حوالے سے ہمارے بیورو چیف ملک قیصر عباس کی رپورٹ کے مطابق تھانہ عطا شہید و تھانہ سیلہ والی کی بانڈری لائن پر دن دیہڑے ڈکیٹی، اجر 8,60,000 روپے سے معروم۔ تفصیلات کے مطابق الیاس ولد حنیف قوم راجپوت ساکن 130 جنوبی کریشنگ سٹون سپلائی مختلف اضلاع میں کرتا ہے۔ جمعہ کے بعد کریشنگ سٹون پلانٹ پر رقم ادائیگی کی غرض سے بسواری موٹر سائیکل نمبر SGM 130 پر مارکیٹ آیا اور مختلف سٹون پلانٹ پر رقم ادائیگی کرنے کے بعد 116 کریشنگ مارکیٹ جا رہا تھا کہ 119 جنوبی کے قریب 2 کس نامعلوم افراد جن کو سامنے آنے پر پہچان سکتا ہے بسواری 125 موٹر سائیکل مسلح آتشی اسلحہ کے زور پر زبردستی روک کر مبلغ رقم 8,60,000 روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ دوسری واردات میں حسن رضا ولد ظہور حسین قوم راجہ ساکن 116 جنوبی سے مبلغ رقم 13,000 روپے زبردستی چھین لیے۔ دونوں شہریوں کو ایک ہی جگہ پر لوٹ کر ڈاکوؤں نے دونوں موٹر سائیکلوں سے چابیاں نکال کر فرار ہونے میں کامیاب۔ بعد ازاں 15 پر کال کرنے کے بعد SHO تھانہ عطا شہید اور SHO تھانہ سیلہ والی موقع پر پہنچ گئے اور جائے وقوع کا جائزہ لینے کے بعد متاثرہ شہری کو تھانہ عطا شہید پولیس کو درخواست گزاری کرنے کا کہا گیا۔ تاجر برادری سراپا احتجاج اور آئے روز ڈکیٹی کی وارداتوں کی وجہ سے خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ تاجر برادری و متاثرہ شہری نے DPO سرگودا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سیلہ والی سے ہمارے بیورو چیف ملک قیصر عباس کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح سرگودا کے شہری اور گرد و نواح میں بھی بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف عوام سراپا احتجاج۔ ٹھیک ہی کسی نے کہا ہے قدرتی بجلی جب انسان پر گرتی ہے تو وہ انسان جھلس جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس وقت حکومت کی جانب سے اور واپڈا والوں کی طرف سے جو بل کی بجلیاں گرائی گئیں اس سے نہ انسان مر رہا ہے اور نہ ہی جل رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سسک کر آدھی زندگی اور آدھی موت کے درمیان جھول رہا ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی انسان نہیں کھلا سکتا، شام کو صحیح طریقے سے گھر کا چولہا نہیں جلتا، بجلی کا بل غریب انسان کیسے ادا کرے۔ دوسری جانب واپڈا والوں کی بے ایمانی میٹر ریڈنگ کی ڈیٹ بھی 5 تاریخ سے 15 اور 16 تاریخ تک کرنے لگے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر کوئی قانون ہے؟ کیا سب قانون ایک غریب مزدور ریڑھی بان کے لیے ہیں، ایک غریب کے لیے ہیں؟ کیا سب قانون ایک کلفی بیچنے والے کے لیے ہیں؟ کیا پاکستان کے سب قانون کمزور کے لیے ہیں؟ کیا ان کو کوئی پاکستان میں پوچھنے روکنے والا نہیں؟ میں تمام اداروں پر سوالیہ نشان چھوڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے میں کسی کو بھوکا نہیں سلاؤں گا۔ اگر حکومت وقت اور ان ظالموں کا بس چلے تو یہ ایک وقت کا نوالا بھی غریب کے منہ سے نوچ کر نکال لیں۔ پیٹرول کی قیمتوں کا اندازہ لگائیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا کرایہ 100 روپے اور اگر دوسرے شہر جاتے ہیں تو کرایہ 1000 روپے پڑتا ہے۔ غریب کہاں جا کر مرے؟ غریبوں کے بچے اسکول کی فیس تک ادا نہ ہونے کی وجہ سے گھر بیکار پڑے ہیں، چینی آٹا اور دال خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ غریب کہاں جائے؟ ہمارے اوپر جو ٹیکسز کی بجلیاں گرائی جاتی ہیں اور جو ٹیکس کے گولہ بمباری کی جاتی ہے، جناب عالی خدا کے واسطے تھوڑا ہم پر رحم کرے، ہماری نسلوں پر رحم کرے۔ یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ انہوں نے پڑھائی کر کے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آرمی افیسر، ڈاکٹر، پولیس افیسر بن کر پاکستان کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرنا ہے۔ جناب عالی آپ لوگ ایئر کنڈیشن سے باہر نکل کر دیکھیں، کسی غریب کے بچے نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کسی کے پاس تن چھپانے کے کپڑے نہیں، کون دے گا اس کا حساب؟ جناب عالی سے استدعا ہے کہ اسے ختم کریں۔ 900 دہاڑی والے کا بل 10,000 اور 15 لاکھ ماہانہ تنخواہ لینے والے کو 2000 یونٹ فری، گاڑی فری، فیول فری، پیٹرول فری، ڈاکٹر فری، ملازم فری۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ 9,200 بل آ گیا، 500 روپیہ دہاڑی اسی کمانے اسی بل کہڑے پاسوں کریے؟ حکومت سان منظور نہیں، ٹھیک ہے یہ کہڑ جا کے پورے کر لے 500 روپیہ سان دہاڑی مل گئی، مزدور بننے یہ 9,200 روپیہ ایک وقت ایک بار ظلم نہیں۔ کراچی سے ہمارے بیورو چیف وقار پلاری کی رپورٹ کے مطابق آج سیاسی اور سماجی شخصیت پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما مراد گبول نے فائنلسٹ ٹیموں کے اعزاز میں شائعہ دیا۔ اس میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما حاجی دریا خان گبول، حسن گبول نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما مراد گبول نے کہا جہاں گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہاسپٹلز ویران ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی نے ہمیشہ سپورٹ اور نوجوانوں کو سپورٹ کیا ہے، آئندہ بھی ان نوجوانوں کو سپورٹ کرتے رہیں گے تاکہ یہ نوجوان پلیئر اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔
मुराद गबोल ने मजीद कहा, मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे मलीर के नौजवानों में बड़ा टैलेंट मौजूद है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये नौजवान आगे निकलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आखिर में दोनों टीमों के कैप्टन ने पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा मुराद गबोल को सिंध की सकाफत झलक का तोहफा पेश किया। दोनों टीमों के प्लेयरों ने मुराद गबोल का शुक्रिया भी अदा किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक के पुत्र हटा ते नहीं विकदे। पंजाब पुलिस के ऐसे इकदाम पर डीपीओ लिया को खैराज तहसीन। अमरोज शबीर अहमद कौम शेख साकिन बस्ती सरगानी करोड़ ने 15 पर कॉल की कि मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ ना है, मैं बेरोजगार हूँ, मेरा रोजी का कोई जरिया ना है, हम भूख से मर रहे हैं। जिस पर जनाब असदुर रहमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया हमरा मोहम्मद अदरीज खान इंस्पेक्टर SHO थाना करोड़ सिक्योरिटी बराज करोड़ ने काफी मिकदार में घरेलू जरूरियात और राशन का सामान और नकदी लेकर शबीर अहमद के घर चलकर पहुंचा दिया। पंजाब पुलिस लिया के इस अच्छे और ऐसे इकदाम पर शबीर अहमद की पूरी फैमिली ने IG साहब पंजाब, DPO साहब लिया और पूरी पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की। रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीज गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक मासूम फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिगर को फाड़ देने वाली है। पीर असद शाह की हवेली में तशद्दुद और ज्यादती के बाद यहाँ पर होने वाली फातिमा की पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा का जिस्म गलने के मरहले में दाखिल हो चुका था। फातिमा का चेहरा एक तरफ से नीला और दूसरी जानिब से हरा हो चुका था, जबकि इसके जिस्म पर मुख्तलिफ तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा के जिस्म पर तशद्दुद के 9 निशानात है, जिसमें आंख, कमर, पेशानी, पैर, घुटने और हाथ पर तशद्दुद हुआ। कुछ अज़ा को माइक्रोबायोलॉजी के लिए भेजा गया है। फातिमा के साथ मुख्तलिफ वक्तों में 2 तरफा ज्यादती की जा रही थी, इसके जख्म भरने लगे थे। मौत से कुछ वक्त कबल भी ज्यादती की गई थी। दिन रात ज्यादती की वजह मौत का सबब भी बनी है। निस्वानी पोशीदा हिस्से पर लाल उभार आ गया था, जहाँ का पानी लेकर माइक्रोबायोलॉजी के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने फातिमा पर जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक की है। बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती भी हुई है। तफ्तीश में शामिल साबिक SHO रानीपुर हेड मुहर्रिर डॉक्टर और कंपाउंडर का भी रिमांड पर लेने का फैसला किया गया। पुलिस को हकाइक मसक करने, लाश बगैर पोस्टमार्टम दफनाने पर नामजद किया जाएगा। DIG जावेद जसकानी का कहना है कि हवेली में तमाम बच्चों को फौरी रेस्क्यू करके इनके घरों को भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए गए, जबकि हवेली को सील करके पुलिस कैंप कायम कर दिया गया है और तमाम मर्दों के DNA सैंपल भी लिए जाएंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीज गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक FIA गुजरात सर्कल की बड़ी कार्रवाइयां। डिप्टी डायरेक्टर गुजरात सर्कल तारिक मसूद की हिदायत पर छापा मार कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हवाला हंडी और करेंसी के गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान बगैर लाइसेंस के मनी चेंजेस पर कारोबार कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान में अब्दुल रहमान और सदाम हुसैन शामिल। मुलजिमान को गुजरात के इलाका शीशा चौक से गिरफ्तार किया गया। छापे के दौरान मुलजिमान के कब्जा से 44,50,000 रुपए और 3,450 सऊदी रियाल बरामद हुए। मुलजिमान बरामद होने वाली करेंसी के हवाला से हकाम को मुतमईन न कर सके। मुलजिमान से हुंडी हवाला से मुतल्लिक मुत्तहिद रसीदें, रजिस्टर और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। मुलजिमान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक कराची सुबह सवेरे फायरिंग के वाकयात, खवातीन समेत 3 अफराद जहां बक 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक शराब गोड के करीब अबू अल हसन असफानी रोड पर गाड़ी पर फायरिंग के नतीजा में लड़की समेत 2 अफराद जहां बक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंची तो कार में सवार लड़की और लड़का जहां बक हो चुके थे। हवाला से पुलिस का कहना है कि लड़की के अहले खाना मौका पर पहुंचे और इसकी लाश अपने साथ घर ले गए, जबकि लड़के की लाश पुलिस ने कब्जा में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। DSP शराब गोड सुहेल फैज के मुताबिक अबू अल हसन असफानी रोड पर दौरे कत्ल की वारदात हैरत के नाम पर हुई। मकतूल लड़के की शिनाख्त एहसन के नाम से हुई है। इनका कहना है कि पुलिस ने वारदात में मुलव्वस होने के शुबा में लड़की के वालिद और भाई को हिरासत में ले लिया। अलावा अजीज सुबह सवेरे कराची के इलाके बड़ा बोर्ड में भी नूरानी मस्जिद के करीब फायरिंग से एक शख्स जहां बक जबकि दूसरा शख्स आसिफ जख्मी हो गया।
कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वकार पलारी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अल जवाद स्कूल के बच्चों को इनामात और मिठाई तकसीम करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में चेयरमैन ज़हीर अहमद मेमन, जनरल सेक्रेटरी मुहिबुल्लाह शाह, आलम शेर अवान, सरप्रस्ते आला मिर्जा अकरम बेग और दीगर ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि अल जवाद स्कूल के बच्चों की स्क्वाड ने 14 अगस्त के दिन मेहमानाने गरामी को सलामी दी और कौमी परचम को सलामी देकर अपने मुल्क पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। वो अपने मुल्क पाक फौज से मोहब्बत भी रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। रायवेंट से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन बाट की क़ियादत में दरियाए सतलज के लोगों के लिए मुख्तलिफ जगह पर राशन दिया जा रहा है। किसानों के घर तबाह हो गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान सैलाब से मुतासर अफराद के लिए फौरी इक़दाम करे। किसानों की लाखों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई। ये गरीब लोग तो पहले ही महंगाई के मारे थे, अब ये सैलाब से मुतासरा हो गए। इनका घर बार साजो सामान सब कुछ सैलाब की नजर हो गया। अब पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इन सैलाब से मुतासरा खानदान को गवर्नमेंट की जानिब से फौरी इमदाद भी की जाए और इन्हें हर तरह की रिलीफ भी दी जाए। इनके हालात का इजहार करते हुए किसान इत्तेहाद के चेयरमैन चौधरी खालिद हुसैन बाट ने कहा तो आज फोर्ट अब्बास में कनाडा मुकीम अपने दोस्त मियां मोहम्मद इकबाल जोया को मिलने इनके डेरा पर तशरीफ लाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम जितना हो सका सैलाब ज़िदगान की इतनी ही मदद करेंगे। अपडेट कर रहे थे रायवेंट से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। साहिवाल इंतजामिया भी इस माफिया को नकेल डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। टीचिंग अस्पताल साहिवाल में पार्किंग माफिया बेलगाम। पार्किंग माफिया ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। मुतलका इंतजामिया भी इस माफिया के सामने बेबस दिखाई देती है। टीचिंग अस्पताल में ओवर चार्जिंग करते हुए शहरियों की जेबों पर डाके डाले जाते हैं। टीचिंग अस्पताल साहिवाल में पार्किंग ठेकेदारों की जानिब से शहरियों को लूटने के लिए टोकन फीस बोर्ड भी उतार दिए गए। पार्किंग स्टैंड शहबाज नामी मुलाजिम अपनी मर्जी की टोकन फीस वसूलता है, जो कि वीडियो में साफ दिखाई देता है। टीचिंग अस्पताल साहिवाल मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड माफिया टोकन फीस 10 रुपए की बजाय 20 और 30 रुपए वसूली जाती है। शहरियों की बहस करने पर पार्किंग मुलाजमीन इनको संगीन नताइज की धमकियां और मुतलका इंतजामिया की मंथली देने का जवाब बनाकर पैसे वसूलता है। शहरियों का कहना है इमरजेंसी और परेशानी की हालत में अस्पताल का रुख करना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल पार्किंग के डबल पैसे वसूल करने पर ज्यादा तकरार नहीं कर सकते। आम अवामी समाजी हलकों ने निगरान वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से टीचिंग अस्पताल साहिवाल पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। बावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद काजिम नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की खसूसी हिदायत पर SHO थाना सदर बिलाल अहमद कुरैशी की सरपरस्ती में पुलिस थाना सदर का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। मंशियात फरोश सज्जाद नामी मुलजिम गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक IG पंजाब की जुराइम की सरकोबी के लिए जारी हिदायत पर अमल दरामद करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की खसूसी हिदायत पर जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुहिम में बड़ी कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास के VN के मुताबिक SHO थाना सदर सिलपुर बिलाल अहमद कुरैशी ने स्पेशल टीम के जरिए जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन करते हुए जियाद फरोज सज्जाद नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 1150 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमात का अंदराज करके मुलजिम को हवालात बंद कर दिया। इस मौका पर SHO थाना सदर बिलाल अहमद कुरैशी का कहना था कि DPO बावलपुर मोहम्मद अब्बास की हिदायत के मुताबिक जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। SHO बिलाल अहमद कुरैशी का मजीद कहना था कि मंशियात से हमारी नौजवान नस्ल शदीद मुतासिर हो रही है। ऐसे घिनौने जुराइम करने वाले अफराद के खिलाफ इसी तरह क्रैकडाउन जारी रखते हुए मजीद मौसर कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी ताकि मुआशरे को मंशियात जैसी लानत से छुटकारा मिल सके और मुआशरे को अमन का गहवारा बनाया जा सके।
कराची से हमारे रिपोर्टर महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस का स्टेट क्रिमिनल्स के साथ पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस का दौरान गश्त TCS गोदाम नज़द महराज होटल के पास स्ट्रीट क्रिमिनल से पुलिस मुकाबला। मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि साथी नामालूम मुलजिम अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मी मुलजिम की शनाख्त जुम्मा खान वाल मोहम्मद अनवर के नाम से हुई। मुलजिम से एक अदर 9mm पिस्तौल व 3 जिंदा राउंड बरामद हुए। जख्मी मुलजिम का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। जख्मी मुलजिम को इलाज मुआवजे के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि साथी मुलजिम की तलाश जारी है। SSP डिस्ट्रिक्ट कुरंगी SHO थाना कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इंस्पेक्टर मजहर इकबाल ऐवान भी हमरा मौजूद थे। Do you know that hair fall is a sign of weak roots? For deep strengthening treatment, there's Pantene 3-Minute Miracle. See how its precision blended Pro V formula goes into each strand and strengthens from the root all the way to the tip in just 3 minutes. The result? Less hair fall. Time to prove it yourself. 3-Minute Miracle Treatment, only from Pantene. सिलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब डॉक्टर आसफ तुफैल ने कमिश्नर ऑफिस कमेटी रूम सरगोदा में स्पोर्ट्स सहूलियात के बारे में मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में डिवीजन स्पोर्ट ऑफिसर सरगोदा, डिवीजन सरगोदा के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफिसरान, तहसील स्पोर्ट्स अफिसरान और PMU स्पोर्ट्स बोर्ड के अफिसरान ने शिरकत की। इस मौका पर सरगोदा डिवीजन में मौजूद स्पोर्ट्स सहूलियात से मुतल्लिक अफिसरान की जानिब से DG स्पोर्ट्स को ब्रीफिंग दी गई। जेर तामीर स्पोर्ट्स सहूलियात के मुतालिक भी PMU स्पोर्ट्स बोर्ड अफिसरान ने डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब डॉक्टर आसफ तुफैल को आगाह किया। तामीर हैदराबाद थल मनकेरा क्रिकेट ग्राउंड और जेर तामीर तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ईसा खेल के मुतालिक आने वाली तकनीकी और कानूनी मुश्किलात के बारे में भी तफसीलन बताया गया। सिलसिला में DG स्पोर्ट्स ने मनकेरा क्रिकेट ग्राउंड पर काम को रिवाइज करने और तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ईसा खेल पर मुतनाज़ा जमीन के तनाजा के अलावा बकिया रकबा पर काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने का हुक्म सादिर फरमा दिया। बाद DG स्पोर्ट्स स्टेडियम सरगोदा स्पोर्ट्स जिम्नेजियम, फूड सेटरीट, स्क्वैश कोर्ट, प्रैक्टिस कोर्ट, पिचेस, एस्ट्रोटर्फ, हॉकी ग्राउंड और तहसील स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सरगोदा का विजिट किया। इस मौका पर DG स्पोर्ट ने तहसील स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सरगोदा और जिम्नेजियम मनकेरा को हर हाल में दिसंबर 2023 तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मजीद हॉकी एस्ट्रोटर्फ के काम के मुतालिक एक्शन लेते हुए PMU अफिसरान को हिदायत की कि स्कीम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ महबूब अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक शेरशाह पुलिस की कार्रवाई, आइस फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस SSP केमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली की खसूसी हिदायत पर शेरशाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आइस की फरोख्त में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक SHO शेरशाह इंस्पेक्टर उस्मा खान ने पुलिस पार्टी के हमरा मोड़ो कब्रिस्तान एरिया दरबार होटल के करीब कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके आइस भी बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम अरशद उर्फ शीना वाल्द रियाज के कब्जा से 75 ग्राम आइस बरामद हुई। पुलिस का ये भी बताना है कि गिरफ्तार मुलजिम क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है, जो इससे कबल भी मुकदमा इल्जाम नंबर 162/18 बजुर्म दफा 392/34 मुकदमा इल्जाम नंबर 58/2020 बजुर्म दफा 23/1A में थाना शेरशाह से गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ कुल खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक माही गिरों के हकूक और दरिया सिंध और डेल्टा की बहाली के लिए मुसलसल जद्दोजहद करने वाले फिशर फॉक फॉर्म के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अली शाह की दूसरी बरसी के मौका पर मुकालमे में एक तकरीब का इनेकाद किया गया और पौधा भी लगाया गया। इसके नाम पर तजवीज किया गया था। फिशर फॉक फॉर्म के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अली शाह की साहबजादी मकली में सिंध कल्चर फॉर्म की जानिब से सैयद मोहम्मद अली शाह की याद में मुनकीदा तकरीब से खिताब करते हुए फिशर फॉक फॉर्म के मरकजी रहनुमा सईदा यास्मीन शाह, सिंध कल्चर फॉर्म की
चेयरमैन सईदा यास्मीन शाह, सादिक लाकू, नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा के सदर महबूब बरोही, रहमतुल्लाह साइमन, मोहरम अली पनहोर, GM तहीम, निसार अहमद साहब, दानो साइमन, सुलेमान जाकरो और दीगर ने कहा कि मरहूम सैयद मोहम्मद अली शाह ने न सिर्फ माहीगीरों को हकूक दिलाने के लिए भरपूर जद्दोजहद किए, सिंध दरियाओं, झीलों और समंदरों पर भी उन्होंने आबी वसाइल को चोरी करने वाले माफियाज और माफियाज से लड़कर मलाओं को इनका हक भी दिलाया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली शाह एक मुकम्मल तंजीम का नाम है जो कि जिम्मेदार तंजीम है। मुल्क और बैरून मुल्क माहीगीरों की बुनियादी मसाइल के साथ साथ डेल्टा की तबाही और दरियाए सिंध पर डैमों के लिए आलमी सतह पर पानी रोकने के अहम मसाइल सुने और उठाए और हर फॉर्म पर जद्दोजहद की। और उनका कहना था कि फिशर फॉक फॉर्म के साबिक चेयरमैन मरहूम मोहम्मद अली शाह ने मकामी और गैर मुल्की तंजीमों और रियासत को मालियाती निजाम और समुद्री निजाम को लाख खतरात से पेशगी आगाह करके हमें पॉलिसियां बनाने पर मजबूर किया। इनका कहना था कि मोहम्मद अली शाह ने भी इंडस डेल्टा की तबाही, कांसरा साहिली बाशिंदों के मसले पर मुतहरिक किरदार अदा करते हुए आवाज बुलंद की और कहना था कि वो जिस्मानी तौर पर हमसे बिछड़ गए हैं, लेकिन रूहानी तौर पर इनकी फिक्र और जद्दोजहद हमारे लिए मिशले राह है, जिन्हें माहीगीरों और डेल्टा के बासियों को मुकम्मल हकूक देने के साथ साथ दरिया सिंध और पानी के मसले पर भी भरपूर जद्दोजहद करनी चाहिए। इस मौका पर मकली के मकाम पर सैयद मोहम्मद अली शाह की याद में एक दरख्त भी लगाया गया। इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कड़कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक रात को गुड़ खाने और दूध पीने से निजाम अंजमाम ठीक रहता है। कालिया तहकीक के मुताबिक एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते। औसतन एक 4 साल का बच्चा रोजाना तकरीबन 300 से 400 सवाल पूछता है। वो लोग जो स्याह लिबास पहनते हैं ज्यादा काबिल भरोसा, पुरअतमाद और पुर हौसला दिखाई देते हैं। सफर करने की आदत आपको ज्यादा ज़हीन और तख्लीक कार बनाती है और आपको मुश्किलात हल करने की सलाहियत को भी बढ़ाती है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो दिमाग अपने ही न्यूरॉन पर गुजारा करता है, जो खतरनाक बात है। लोग जब जिस्मानी तौर पर थके हुए होते हैं तो वो ज्यादा ईमानदार होते हैं। रात गए देर तक बातचीत करने वाले लोग अक्सर सच बोलते हैं। मोटरवे पर टायर क्यों फटते हैं? आज की ये वीडियो बहुत अहम वीडियो है, खुद भी जरूर देखिए और लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइए। कुछ दिन पहले लाहौर के 7 नौजवानों की सड़क हादसे में मौत हो गई। वजह टायर का फटना था। अहम नए बनने वाले एक्सप्रेसवे और मोटरवे पर इन दिनों गाड़ियों के टायर फटने के वाकयात मंजर आम पर आ रहे हैं, जिनमें रोजाना कई लोग जान की बाजी हार रहे हैं। एक दिन मेरे जहन में सवाल आया कि मुल्क की जदीद तरीन सड़कों पर सबसे ज्यादा हादसात क्यों हो रहे हैं, और हादसे का एक ही तरीका है और वो भी सिर्फ टायर फटने से। हाईवे बनाने वालों ने सड़क पर ऐसी कौन सी स्पाइक्स डाल दी हैं कि सबके टायर फट गए। दिमाग तूफानी हो गया तो मैंने सोचा कि आज इस चीज का पता लगा लेना चाहिए, इसलिए टीम को तलाश करने के लिए जमा हुए। अब सुनो, हमने तज्जिये के लिए एक दोस्त को बुलाया और हम किया SUV में सवार हो गए। नोट करें कि असल मसला फ्लैट टायर का है। पहले हमने कोल्ड टायर का प्रेशर चेक किया। कोल्ड टायर से मुराद है कि हमने मोटरवे पर चढ़ने से पहले या अपना सफर शुरू करने से पहले जब टायर इतने गर्म नहीं थे उसका प्रेशर चेक किया और इसे बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक एडजस्ट किया, जो कि 25 PSI है। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की गाड़ियों में हवा का एक ही दबाव रखा जाता है, जबकि हमारे मुल्क में लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता, या वो ईंधन बचाने के लिए टायरों में जरूरत से ज्यादा हवा भर लेते हैं, जो उमूमन 35 से 45 PSI होता है। आए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम 3 लेन चढ़ गए और कार दौड़ा दी। कार की रफ्तार 120 से 140 किलोमीटर फी घंटा रखी गई। 2 घंटे तक इतनी तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने के बाद हम इस्लामाबाद के करीब पहुंच गए। जब हमने रुककर दोबारा टायर का प्रेशर चेक किया तो ये चौंका देने वाला था। अब टायर का प्रेशर 52 PSI था। अब सवाल ये पैदा होता है कि टायर का प्रेशर इतना कैसे बढ़ गया। चुनाचे जब उसके लिए टायर पर थर्मोमीटर लगाया गया तो टायर का दर्जा हरारत 92.5 डिग्री सेल्सियस था। अब सारा मुअम्मा खुल गया कि सड़क पर टायरों की रगड़ और ब्रेक रगड़ने से पैदा होने वाली गर्मी की वजह से टायरों के अंदर की हवा फैल रही है। बैक टू बैक टायरों के अंदर हवा का दबाव बहुत बढ़ गया है। चूंकि हमारी टायरों में हवा पहले से ही बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक थी, इसलिए वो फटने से बच गए। लेकिन टायर जिनमें हवा का दबाव पहले से ज्यादा है, यानी 35 PSI से ऊपर है, या एक टायर जिसमें कट है, उसके फटने का इम्कान ज्यादा होता है। इसलिए अपने टायर प्रेशर को हमेशा चेक करते रहें। आपकी हवा कम से कम 25 से लेकर 28 PSI तक होनी चाहिए, या हद दर्जा 30 PSI तक होनी चाहिए। इससे ज्यादा हवा आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि मोटरवे पर इस गर्मी के मौसम में 2-2.5 घंटे के सफर से आपके टायर की हवा बहुत ज्यादा फैल सकती है
और जिससे कमजोर टायर के फटने का अंदेशा होता है। अपने तमाम दोस्तों को इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए ताकि आपकी या मेरी काविश से किसी की जिंदगी बच जाए तो इसका सवाब आपको कयामत तक मिलता रहेगा। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी। एशिया कप के दौरान वर्ल्ड कप ट्रॉफी 3 दिन के लिए पाकिस्तान के तफरीही दौरा पर पहुंच गई। सफदर साहब, बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ, चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वकार अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला मुराद और चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन इब्राहिम हैदरी नजीर अहमद भुट्टो ने इब्राहिम हैदरी टाउन यूसी कैटल कॉलोनी में वाक़े मज़बा खाने का दौरा किया। डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला मुराद और टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने स्लाटर हाउस के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला मुराद और टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो को स्लाटर हाउस इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर चेयरमैन यूसी कैटल कॉलोनी जवेद इकबाल काकू, वाइस चेयरमैन अब्दुल सत्तार हमायती, यूसी सदर रसूल खान, PYO PS 90 के सदर नवीद गुजर, जनरल काउंसलर कमाल नजर और दीगर भी अमरा मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वकार अली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वजीर सिंध बराए समाजी बहबूद साजिद जोकियों की बिलावल हाउस में मुलाकात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रुकन सिंध असम्बली साजिद जोकियों ने अपनी कारकर्दगी से आगाह किया। सिंध भर में तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ अतफ़ाल और मंशियात बहाली के मराकिज़ तामीर किए, जबकि तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ अतफ़ाल के हवाले से क़वाइद व ज़वाबित भी मरतब किए गए। अपने हल्का इंतखाब PS 87 मलीर में एक कैडेट कॉलेज, 1 लॉ कॉलेज, 3 गर्ल्स कॉलेज और 2 अस्पताल बनाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को साजिद जोकियों की ब्रीफिंग। मेरे हल्का इंतखाब में 2 अस्पताल, 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और 1 मेडिकल कॉम्प्लेक्स ज़ेर तामीर है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को साजिद जोकियों की ब्रीफिंग। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से साजिद जोकियों की मुलाकात के दौरान पर इनके साहबजादे बैरिस्टर शाहिद भी हमरा मौजूद थे। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। सिलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा थाना जाल चकिया के इलाका में फायरिंग का वाकया। नवाई इलाका चक 55 शुमाली के करीब नामालूम मुलजिमान की कार पर फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में बिलाल, हसन बिलाल, इरफान और सनाउल्लाह शामिल। फायरिंग के इलाका में खौफ व अराज फैल गया। वकुआ पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतला मिलते ही सब इंस्पेक्टर इकबाल गोंदल, थाना जाल चकिया पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। फोरेंसिक टीम ने भी मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा करने शुरू कर दिए। दोनों पार्टियों की दुश्मनी ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर रखा है। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है।
ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास किली की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्टा जरग के करीब कौमी शाहरा पर मुसाफिर वैन और ट्रक में खौफनाक तसादम। ठट्टा हादसे में 2 खवातीन एक बच्ची समेत 7 अफराद जहां बक हो गए, 10 अफराद जख्मी हुए। ठट्टा मुसाफिर वैन हैदराबाद से ठट्टा आ रही थी जबकि ट्रक हैदराबाद जा रहा था। दोनों गाड़ियों में आमने सामने तसादम हो गया। इतला पर पुलिस और मकामी अफराद जख्मी और लाशों को जरग अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुत्तक जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक है। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास किली की रिपोर्ट के मुताबिक जरग के करीब बिस्मिल्लाह चौक पर हैदराबाद से कराची आने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर वैन आने वाले ट्रक से टकरा गई। आय के मुताबिक मरने वाले नादर अली वाल्द मुमताज अली ब्रोही, शदात गोड़, गुलाम हुसैन वाल मोहम्मद याकूब मेमन बटाई कॉलोनी कोटारी, मुख्तार अली वाल सफदर अली गुलाम उल्लाह, मोहम्मद अली वाल जुल्फकार अली लोधरा, जुल्फकार अली वाल्द अली अकबर हैदराबाद, हिजरान वाल्द सुलेमान राहोजो हैदराबाद नामालूम सवार भी जहां बक हुए। जख्मी होने वालों में नूर जहां, जोजा मुख्तियार डेरा गाजी खान, राहिला भुट्टो, रामनिवाज भुट्टो की साहबजादी हैं, गुलाम मुस्तफा वाल्द मोहम्मद हुसैन वाल सजावल, प्यारी बेटी मोहम्मद इब्राहिम हैदराबाद, साबिर अली गुलाम मुस्तफा लोधरा पंजाब, अब्दुल सत्तार वाल्द मोहम्मद मूसा खोसो, नौशहरो फिरोज शुबान अली वाल्द गुलाम अली, दादू कुर्बान अली वाल्द इकबाल सादकाबाद और दीगर भी शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डी के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर इकरामुल हक का अलल सुबह सब्जी व फ्रूट मंडी का दौरा, फलों और सब्जियों की नीलामी के अमल का जायजा लिया। आवाम को सस्ती सब्जियों और फलों की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए प्राइज मजिस्ट्रेट्स बाजारों में कीमतों की कड़ी निगरानी करें। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर इकरामुल हक ने फलों और सब्जियों की नीलामी के अमल का जायजा लेने के लिए सुबह सवेरे सब्जी व फ्रूट मंडी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंडियों की मॉनिटरिंग का मकसद आम मार्केट में रोजमर्रा अशिया के नर को कम करना है। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए